Good morning to all of you. So, in the last class, we have completed a topic, chapter 10 of international business. We have completed important terms which is used in the external trade. So, what we have discussed, that is free on board, cost and freight, as well as cost, insurance and freight. And we have already also discussed about the World Trade Organization. So what is the meaning of the World Trade Organization, nature of the World Trade Organization, and the benefits, role and objectives of the World Trade Organization we have already discussed in the last class. As well as we also started a topic, that is mode of the entering into the international business. So what are the different mode when any firm or any country want to enter in the international business? So we have discussed what is the meaning of the exporting and the importing. So exporting means sending of the goods and services from the home country to a foreign country, and importing means buying the goods and services from the home country for our home country. Okay, so importing and exporting can be done in two ways. First one is it can be direct or it can be indirect. So direct means any firm itself approaches to the any foreign country and complete all the legal formalities itself. But in the case of indirect, so firm employs a middleman to perform all these legal formalities, then it is called the indirect exporting or the importing. So meaning and the objective. So meaning means meaning of export as well as import is export trade refers to the selling goods and services which is produced in the home country and sell all these goods and services to the foreign country or across the border, and the seller of such goods and services is called exporter, and buyer of these goods and services is called the importer. Okay, till here we have discussed in the last class. So today we are going to start the what are the objective of the importing and the exporting of the goods and services. So the first one is to sell the surplus goods. A country can sell its surplus output to a foreign country as sometimes countries produce the product more than its need in home country, so such surplus produce can be exported. Okay, a country can sell its surplus output to a foreign country. ठीक है, कंट्री कोई भी सिंगल कंट्री या डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपना जो भी सरप्लस आउटपुट हुआ मीन्स वो क्या करे, कमोडिटी को वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी गुड्स को उन्होंने परचेज़ किया. अब वो क्या करते हैं, जो भी उनकी कंट्री के लिए नीड होता है, जितने भी कमोडिटी की जितने भी गुड्स की नीड हुई उतना छोड़ के वो जितना भी सरप्लस अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में राइस का कंजप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल आई सेड 100 kg है. ओके, पूरा कंजप्शन क्या है 100 kg है, और राइस का प्रोडक्शन इन अ ईयर कितना हुआ है 150 kg हुआ है. ठीक है, राइस की जो कंजप्शन है कंट्री में हमारा 100 kg है, मतलब 150 kg पूरा टोटल प्रोड्यूस हुआ, जिसमें जब टोटल ऑन एवरेज देखा गया तो इंडिया में क्या है 100 kg राइस की नीड है. अब जो लेफ़्ट अमाउंट बचा ऑलमोस्ट 50 kg, अब वो 50 kg किसी भी कंट्री के लिए क्या है, सरप्लस है, बिकॉज इसका तो कोई वो यूज़ है नहीं, क्योंकि पूरे कंजप्शन के लिए उन्होंने रख लिया जो भी कंट्री का कंजप्शन है. अब 50 kg जो सरप्लस आउटपुट है उसको कंट्री क्या करती है, उसको सोल्ड आउट कर देती है टू दी फॉरेन कंट्री. इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना. सो अ कंट्री कैन सेल इट्स सरप्लस आउटपुट टू अ फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री को वो सोल्ड आउट करती. एज सम टाइम कंट्रीज प्रोड्यूस द प्रोडक्ट मोर देन इट्स नीड इन होम कंट्री, सो सच सरप्लस प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड. और कभी कभी ऐसा भी होता है जो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी नीड से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए क्योंकि उन गुड्स को वो सोल्ड आउट कर दे टू दी अदर कंट्री. ठीक है, सिंपल है. मतलब कंट्री यह करती है, कोई भी सिंगल कंट्री, कोई भी डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपना जो भी सरप्लस आउटपुट है उसको
वो फॉरेन कंट्री में सोल्ड आउट कर देती हैं, और समटाइम्स ऐसा करती हैं कि वो जितनी भी कंट्री में नीड है उससे ज़्यादा ही वो कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है। सो जैसे वो जो भी सरप्लस गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस किया है किसी और कंट्री के लिए उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, वो उसको ईज़िली क्या कर सकती हैं, एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ओके, तो दोनों मोटिव हो सकता है, या तो उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया, या तो सरप्लस ज़्यादा हो गया, या तो इंटेंशनली उन्होंने सरप्लस प्रोड्यूस किया कमोडिटी। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपोर्टिंग और द इम्पोर्टिंग इज दी टू सेल द सरप्लस गुड्स, की सरप्लस गुड्स को वो सोल्ड आउट कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बाई प्रोड्यूसिंग गुड्स एट द लार्ज स्केल कंट्री कैन मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कंट्री क्या करती हैं, बाई प्रोड्यूसिंग गुड्स एट द लार्ज स्केल, कंट्रीज़ क्या करती हैं, लार्ज स्केल पे गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, सो दैट देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज में वो कोई भी कंट्री क्या करती है, लार्ज स्केल पे गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, लार्ज लेवल पे मींस लार्ज अमाउंट में गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, सो दैट जो भी यूटिलाइजेशन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका वो बेटर यूटिलाइजेशन कर सके, जितने भी रिसोर्सेज उन्हें मिले हैं उनका वो क्या कर सके, बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट वन इज़ टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। Countries can earn foreign exchange by selling the goods in foreign market, and this can be used to buy capital goods and technology from foreign market। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी कोई कंट्री क्या करती है, हम लोग जब भी इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं, इंटरनेशनली कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं अदर कंट्री के साथ, तो हमें पता है कि हम पेमेंट होम करेंसी में नहीं कर सकते। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो भी पेमेंट होगा, अगर हम अमेरिका से ले रहे हैं तो हम पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे, और अगर हम एक्सपोर्ट किया है तो वो हमें पेमेंट किस में करेगा, डॉलर में, और जब हमने इंपोर्ट किया है तो हम पेमेंट क्या करेंगे, वो भी डॉलर में ही करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा जिस कंट्री के साथ होगा, वो वेदर कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ पे जो मनी सर्कुलेट होता है इकॉनमी में, उसी में हमेशा पेमेंट होता है। वो चाहे जो यूरोपियन कंट्री में करेंगे तो वो यूरो में होगा, ठीक है, पाउंड में होगा, जब हम लोग किस में करेंगे, लंदन और ये सब में करेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए क्या है, डिफरेंट उसके करेंसी होती, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी ट्रांजैक्शन में आएंगे फॉरेन कंट्री के साथ, तो हम पेमेंट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में ही करेंगे, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में यूरो में करते हैं। सो अर्निंग फ्रॉम दी to earn foreign exchange, country can earn foreign exchange by selling the goods in the foreign market। कंट्री क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मीन जो हम फॉरेन करेंसी को जो एक्सचेंज करना, वो उसको हम लोग अर्न करते हैं बाई सेलिंग द गुड्स इन दी फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में हम उन गुड्स को सोल्ड आउट करके फॉरेन एक्सचेंज क्या करते हैं, अर्न करते हैं। एंड दिस कैन बी यूज टू बाय द कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। अब उसी फॉरेन करेंसी को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम किसी और कंट्री के साथ, कोई फॉरेन कंट्री के साथ हम कोई भी ट्रांजैक्शन में आते हैं। मतलब हमने कुछ एक्सपोर्ट किया गुड्स, हमें फ़ॉरेन करेंसी मिल गई। अब उस फॉरेन करेंसी का हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब हम किसी और कंट्री के साथ इंपोर्ट करेंगे गुड्स को, तो हम उसका पेमेंट क्या कर देंगे, फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज नेशनल इनकम। सो अर्निंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट ट्रेड help to increase the national income, and the higher national income improve the standard of living and the quality of life of people in the home country। ठीक है, इससे क्या होगा, अर्निंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट ट्रेड हेल्प टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। ओके, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। ओके, सो अर्निंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट ट्रेड, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करेगा, नेशनल इनकम हमारी कंट्री की इंक्रीज़ होगी। नेशनल इनकम मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर और एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जो भी गुड्स परचेज हुए हैं या कोई भी कमोडिटी हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनकी फ़ाइनल वैल्यू, जो भी टोटल वैल्यू है किसी भी कंट्री में कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हुआ है,
उसकी क्या वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम में एंड अकाउंटिंग ईयर में, जब हम बात करते हैं एक साल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। मतलब कंट्री की टोटल इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि हमारी कंट्री में पैसा आएगा, इंपोर्ट करने का मतलब है कि हमारी कंट्री से पैसा क्या है वो बाहर जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस की कंडीशन हो गई ना, कि हमारी कंट्री का पैसा बाहर चला गया। और अगर हमारी कंट्री में पैसा बाहर से आ रहा है, सो अर्निंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट रेट हेल्प्स टू इंक्रीज़ द नेशनल इनकम। कि क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा कंट्री की नेशनल इनकम, एंड हायर द नेशनल इनकम इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल इन द होम कंट्री। जैसे ही किसी इंडिविजुअल की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी नेशनल कंट्री की इनकम या इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर हमारी इनकम, मेरी इनकम 40,000 थी, अब मेरी इनकम अगर 60,000 हो रही है, तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। पहले हम क्या थे, थोड़ा सा कोर्स ग्रेन को ही जाते थे, या मेरा जो कंजप्शन था किसी यूनिट का वो हम बहुत लेस अमाउंट में करते थे, हम अपनी सारी जो भी मेरे वांट्स थे हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। बट अब जब मेरी इनकम 40 से 60,000 इंक्रीज़ कर गई है, तो अब मेरा क्या है, हम ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हैं, लग्ज़री गुड्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हुआ, एज़ वेल एज़ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी। अब एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ हुई है, अगर ऐसी ही कंट्री की इनकम इंक्रीज़ होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी, तो हर एक इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, एज़ वेल एज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल विल ऑल्सो इंक्रीजेज इन द होम कंट्री। जो भी लोग होम कंट्री में हैं, ओनली इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर इंक्रीज़ इन द एक्सपोर्ट। कि एक्सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है। एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि हम अपने गुड्स को बाहर बेच रहे हैं। अब बाहर जा रहा है तो हमारी कंट्री की जो भी उससे रिलेटेड डिफरेंट मेंबर्स हैं, जो भी पोर्ट पे लगे हुए हैं, जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्म प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं, तो उनकी इनकम हुई। इनकम इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वन इज़ टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। सो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री का क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। पहले हमारी कंट्री से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑलमोस्ट 100 या 1000 ऑलमोस्ट क्या होता था, गुड्स क्या था बाहर जाता था, ठीक है। ऑलमोस्ट 1000 आप कुंटल ले लो या केजी ले लो, एग्जांपल है ये। अब क्या है कि एक्सपोर्ट क्या है, हमारी कंट्री जो गुड्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो अब हर कंट्री क्या सोच रही है कि हम यहाँ से डिमांड करें गुड्स को। अब इन गुड्स की डिमांड की वजह से अब एक्सपोर्ट हमको ज़्यादा करना होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने का मतलब है कि कमोडिटी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। कमोडिटी जब प्रोड्यूस होंगी तो कोई तो प्रोड्यूस करेगा ना उसको। हम लोग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ करेंगे कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन दी ग्रोथ ऑफ दी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की ग्रोथ होने की वजह से एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज़ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो अभी इससे क्या होगा कि जब एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो कंट्री में इनकम आएगी। अब कंट्री में इनकम आने का मतलब है कि रेवेन्यू हमारी कंट्री का इंक्रीज़ होगा। सो द एक्सपोर्ट ट्रेड जनरेट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। जो भी गुड्स क्या होते हैं पोर्ट पे लगते हैं, इम्पोर्टेड ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस होते हैं विच इज़ इम्पोज्ड ऑन दी एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स। जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अब उस पर कॉरपोरेट टैक्स भी मिलेगा, जो भी जितना कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। सो दिस रेवेन्यू कैन बी स्पेंड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। अब जो भी गवर्नमेंट की इससे इनकम होगी, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगी फ्रॉम द different sources of the taxes, as well as whenever any country exporting the goods, so in return they will get the some fund. So from that fund a company can spend all these fund on the public welfare. अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि उन सारे फंड को क्या करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए स्पेंड करेगी, ठीक। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक वेलफेयर विल ऑल्सो बी इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज़ टू क्रिएट
international place and corporation. Okay, export trade improves understanding and relation and cooperation between the different countries. Okay, export trade क्या improve करता है कि different जो countries है उनके बीच में एक proper understanding create करता है as well as cooperation between the different countries, और different countries के बीच cooperation भी ज़्यादा से ज़्यादा increase होता है, so that there is also international place भी बन जाएगा. मतलब हमारा इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा ना. ऐसे थोड़े कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का गुड्स को एक्सपोर्ट कराएगी, उसके लिए उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन क्रिएट करेगी, सो दैट उनके बीच में कोऑपरेशन भी हो जाएगा बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़. ओके, सो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर द एक्सपोर्टिंग द गुड्स. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट प्रोसीजर. सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर, मतलब हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे. सो फर्स्ट the main step involved in export procedure are, there are different steps in the export procedure. First one is receipt of inquiry and sending quotations. The prospective buyer of a product send an inquiry to different exporter regarding price, qualities, terms and condition, etc. Sometimes inquiry is conducted by the different advertisement also. Receipt of inquiry and sending quotation. ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट सेंड टू एन इंक्वायरी टू अ डिफरेंट एक्सपोर्टर, जिस भी कंट्री को या किसी भी बायर को जिसको कमोडिटी बाय करना है वो क्या सेंड करेगा, डिफरेंट इंक्वायरी सेंड करेगा ऑफ डिफरेंट एक्सपोर्टर को. फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई गुड्स को उनको क्या करना है, इंपोर्ट कराना है, वो क्या करेगी, डिफरेंट इंक्वायरी मीन्स जो भी उनका डिस्क्रिप्शन है कि उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, उसकी प्राइस, क्वालिटीज़, वो हर एक कंट्री को क्या सेंड करेगी, डिफरेंट एक्सपोर्टर कंट्री. तो जिसमें क्या होगा, प्राइस के बारे में होगा कि प्राइस क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेट्रा. समटाइम्स इंक्वायरी इज़ कंडक्टेड बाय द गिवन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो. और कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंट्री एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी उसको इंक्वायरी करती है. द एक्सपोर्टर सेंड अ रिप्लाई टू दिस इंक्वायरी इन फॉर्म ऑफ कोटेशन टर्म्स एंड प्रोफॉर्मा इनवाइस. अब जो सेंडर है वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी को सेंड करेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा इनवाइस. प्रोफॉर्मा इनवाइस कंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, साइज, वेट, शेप ऑफ प्रोडक्ट विच द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई. अब इसमें क्या होगा कि जो भी एक्सपोर्टर है वो प्रोफॉर्मा इनवाइस सेंड कर देगा. उस प्रोफॉर्मा इनवाइस में क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो किस गुड्स को किस टाइप में कैसे उसको सोल्ड आउट कर सकता है, मतलब उसको कैसे सेंड कर सकता है. तो उसकी प्राइस होगी कि कितने का वो गुड है, प्राइस, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी साइज़ क्या है, वेट क्या है, शेप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो एक्सपोर्टर क्या करेगा, फिल करके इम्पोर्टर को प्रोवाइड करेगा. ओके, तो एक पहले क्या हुआ, इम्पोर्टर एक इंक्वायरी किया कि वो एक इंक्वायरी के लिए कोटेशन सेंड कर देगा, एक भेज देगा कि आप उसमें वो पूछ लेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका शेप, साइज़, डिफरेंट वेट, ये क्या है, ये सारा उससे रिलेटेड पूछ लेगा. अब जो भी किसी भी सप्लायर कंट्री के पास जो भी एक्सपोर्टर कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो उसको देखेगी. तो इसके रिटर्न में जो भी एक्सपोर्टर कंट्री है वो क्या करेगी, एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेंड करेगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, शेप, साइज़, वेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर कंट्री will send to the importer country. Okay, importing country. Next one is receipt of order or indent. In case the prospective buyer is satisfied with the information given in pro forma invoice, then the places an order for the goods to be dispatched. This order is known as indent. It contains the description regarding the goods order, their price, delivery, terms and condition, packaging, market instruction, etc. अगर कोई भी प्रोस्पेक्टिव बायर है, ठीक है, जिसने एक इंक्वायरी सेंड की थी कि वो उसे ये गुड्स चाहिए, इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, वो अगर सेटिस्फाइड होगा तो उस जो भी इंफॉर्मेशन प्रोफॉर्मा इनवाइस में गिवन थी, ये प्रोफॉर्मा इनवाइस जो एक एक्सपोर्टर कंट्री सेंड की थी, एक्सपोर्टिंग कंट्री, अगर वो सेटिस्फाइड होगा देन ही प्लेसेस एन ऑर्डर. फिर वो इंपोर्टिंग कंट्री क्या करेगी, एक ऑर्डर को
प्लेस करेगी फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच, कि एक ऑर्डर सेंड करेगी कि अब उस गुड्स को, यस आई एम सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, नाउ यू हैव टू डिस्पैच दैट प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है। दिस ऑर्डर इज़ नोन एज इंडेंट। इसी को क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द गुड्स ऑर्डर। इस जो भी डिस्क्रिप्शन है इंडेंट में, वो क्या होगा, सारा डिस्क्रिप्शन होगा कि कौन सा गुड ऑर्डर किया गया है, उसकी प्राइस कितनी है, डिलीवरी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, पैकेजिंग कैसी है, मार्किंग इंस्ट्रक्शंस कैसा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस इंडेंट में क्या होगी, गिवन होगी। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज assessing importers credit worthiness and securing guarantee for payment. Okay, so after the receiving the order and before manufacturing the goods, exporter inquires about the credit worthiness of the importer to get payment security. To minimize the risk of default payment, most of the exporter prefer to demand a letter of credit. Letter of credit is a surety that the importer will make payment to bank and bank will make payment to exporter on behalf of the importer. Okay, so इसमें क्या है, असेस करेंगे कि इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, मतलब इम्पोर्टर कितना वो है, गुडविल है उसके पास, उस पर कितना वो वर्थफुल है, कि उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है फॉर दी एज वेल एज फॉर दी पेमेंट ऑल्सो, कि वो कितनी गारंटी प्रोवाइड करता है फॉर द पेमेंट ऑफ दी वॉट एवर द गुड्स आर एक्सपोर्टिंग टू दी दैट कंट्री। ओके, सो आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर रिसीव कर लिया, एंड बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के पहले, द एक्सपोर्टर इंक्वायर्स अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इम्पोर्टर टू गेट पेमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, गुड्स को रिसीव करने के बाद, और जो भी उसको ऑर्डर, गुड्स आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, ठीक है, उसको जो ऑर्डर मिला कि ये इम्पोर्टर कंट्री ने बोला कि हाँ हाँ मुझे ये गुड्स चाहिए, और बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से पहले एक्सपोर्टर क्या है, वो पूरी इंक्वायरी करता है क्रेडिट वर्दीनेस, कि कितना ज़्यादा जो ये इम्पोर्टर है वो कितना ज़्यादा फेथफुल है फॉर गेट पेमेंट सिक्योरिटी, कि वो पेमेंट विथ लॉयल्टी के साथ वो पेमेंट करेगा भी कि नहीं। अब जैसे कोई भी एक्सपोर्टर कंट्री इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती कि वो गुड्स का क्या करे, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर दे और उनको भेज दे और पेमेंट का उसको कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो उसके पहले वो पूरा चेकआउट करती है कि ये जो इम्पोर्टर कंट्री है कि वो प्रॉपरली पेमेंट करेगा कि नहीं, तो उसकी क्रेडिट मतलब उसका फ़ंड की वर्दीनेस को चेक करती है। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट पेमेंट, मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर प्रेफर टू डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इस जो भी रिस्क है कि गुड्स को सोल्ड सेंड आउट करना है, तो बहुत सारी कंट्री क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट के डिमांड करती है कि आप हम लोग को, इम्पोर्टर कंट्री को कहती हैं आप क्या करो, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ श्योरिटी दैट द इम्पोर्टर विल मेक पेमेंट टू अ बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है, एक श्योरिटी होती है कि इम्पोर्टर क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा बैंक में, एंड बैंक विल मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर, और फिर बैंक क्या करेगा, पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। इम्पोर्टर के बिहाफ में वो बैंक क्या करेगा, पेमेंट करेगा। देखिए, अब इतने लार्ज स्केल पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई भी मनी से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए कोई एक्सपोर्टर क्या करता है, वो इसके लिए श्योर होना चाहता है कि वो इम्पोर्टिंग जो कंट्री है वो पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी। इस रिस्क को वो रिड्यूस करने के लिए क्या करता है कि एक्सपोर्टर कंट्री क्या है, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री वो क्या करती है कि इम्पोर्टर और इम्पोर्टिंग कंट्री से बोल देती है कि आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। तो अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक ये श्योरिटी होती है कि जो भी इम्पोर्टर है जिसके यहाँ गुड्स जा रहा है वो पेमेंट करेगा, श्योर पेमेंट करेगा, श्योरली टू दी बैंक, वो बैंक को पेमेंट कर देगा, मतलब अमेरिका से वो पेमेंट कर देगा इंडिया में, जो भी जिस बैंक में भी वो कर सकता है, मतलब इंडिया वहाँ से वहाँ पे पेमेंट कर देगा बैंक में, एंड बैंक विल पेमेंट टू दी बायर। अब वो जो बैंक है जिसमें वो मनी आया, अब वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा पेमेंट किसको करेगा, एक्सपोर्टर को करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर, इम्पोर्टर के बिहाफ में। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑब्टेनिंग दी
एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि लाइसेंस की एक्सपोर्ट के लाइसेंस को भी ऑब्टेन करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू द कस्टम लॉ अ फर्म मस्ट एक्वायर एन एक्सपोर्ट लाइसेंस बिफोर एक्सपोर्टिंग गुड्स। ठीक है, कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी अगर गुड्स क्या है, कोई भी फर्म गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा बिफोर एक्सपोर्टिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले। सो द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द एक्सपोर्ट लाइसेंस आर, तो उसके पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज़ ऑब्टेनिंग IEC number. IEC number means import export code. So before starting the export procedure, the exporter has to get an IEC number. This number is used in the filling the formalities of the export procedure. To get this number, a exporter has to apply to the regional import export license authority in the prescribed form. ठीक है, अब कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, एक IEC नंबर लेना पड़ता है। दिस नंबर इज़ यूज्ड इन फिलिंग द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीजर। जो भी एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होगा, जो पूरा कोई भी रिटन फॉर्म में होगा, कोई फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म में क्या है, IEC नंबर एकदम मैंडेटरी है कि उसको फिल करना पड़ेगा। सो टू गेट दिस नंबर, इस नंबर को पाने के लिए एक्सपोर्टर हैज़ टू अप्लाई टू द रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी। ठीक है, अब इस नंबर को पाने के लिए एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, जो भी इसके रीजन में जहाँ पे वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी जहाँ पे, उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसको वहाँ से जाके अप्लाई करना पड़ेगा। वो वहाँ पे अप्लाई करेगा, फिर जाके उसको क्या है वो नंबर मिलेगा। सो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन द एक्सपोर्टर मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो एप्लीकेशन वो वहाँ पे देगा उसके साथ उसको और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज़ डिटेल अबाउट द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर कंट्री जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट जो भी फर्म, उसको पूरा अपना पर्सनल रिकॉर्ड देना पड़ेगा, नेम, एड्रेस, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन उसको अपनी देनी पड़ेगी। बैंक रिसिप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ फीस टू अप्लाई फॉर द IEC नंबर। अब जो भी IEC नंबर लेना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी बैंक रिसिप्ट उसने ली है उस IEC नंबर के लिए, पेमेंट के लिए, उस रिसिप्ट को भी उसको लगाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर क्या करेगा, उसको सर्टिफिकेट देगा, उसको भी उसको उसमें टैग करना पड़ेगा। एंड डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर डैट दे विल नॉट एक्सपोर्टिंग द गुड्स लिस्टेड कॉशन लिस्ट। ठीक है, अब वो ये भी डिक्लेरेशन देगा कि वो उन सारे गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करेगा जो कॉशन लिस्ट में हैं। कॉशन लिस्ट में वो सारे गुड्स होंगे जो किसी भी कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब हम उन गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उस डिक्लेरेशन में वो ये भी डॉक्यूमेंट में ये भी देगा, डिक्लेयर करेगा कि वो ऐसे कोई भी गुड्स को सेंड नहीं करेगा जो कॉशन लिस्ट में है। और कॉशन लिस्ट में वो सारे गुड्स होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती है एक्सपोर्ट में। हर एक गुड्स को हम किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा। If the regional import export license authority is satisfied with the formalities, then they will use an IEC number to the exporter. अगर क्या है, कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी अगर उसके सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो जाएगी, देन दे विल इशू द IEC नंबर टू द एक्सपोर्टर। उस कंडीशन में वो क्या करेगा, IEC नंबर एक्सपोर्टर को वो दे देगा। ओके, now the next one is obtaining RCMC. So what is RCMC? It is the registration cum membership certificate. So exporter get various benefits in the form of subsidies and exemptions in the excise duty tax. To get these benefits they have to show RCMC. After getting IEC number the exporter applies for the RCMC. ठीक है, अब ये क्या है, RCMC क्या है कि exporter get वेरियस बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ एंड एग्जम्पशन इन द एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्सपोर्टर क्या है, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, सब्सिडीज़ में मिल जाएगी, उसको जो भी ड्यूटीज़ पे करना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी जो गुड्स को जो हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन पे टैक्स भी पे करना पड़ता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, यही टैक्स तो क्या है गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो इट इज़ दी ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो उसके थ्रू कोई भी क्या है कि अगर वो कोई भी RCMC ले लेता है, तो कोई भी एक्सपोर्टर क्या है वो
बेनिफिट चाहता है कि उसको सब्सिडीज़ मिल जाए, एग्जेम्पशन मिल जाए एक्साइज ड्यूटी में। टू गेट दीज बेनिफिट्स, इस बेनिफिट के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको RCMC शो करना पड़ता है। RCMC मीन्स रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। सो आफ्टर गेटिंग IEC नंबर, जब उसको ये IEC नंबर मिल जाएगा, IEC नंबर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाएगा, द एक्सपोर्टर अप्लाइज फॉर दी RCMC। फिर एक्सपोर्टर क्या है, अप्लाई करेगा RCMC के लिए। सो RCMC इज़ इशूड बाय दी, सो देयर आर वेरियस डिफरेंट एजेंसी हु इशूड दी RCMC। सो फर्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये क्या करती है, RCMC को इशू करती है। फेडरेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करती हैं, कि डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो RCMC को इशू करती हैं। टू गेट दी RCMC द एक्सपोर्टर सबमिट अ बैंक सर्टिफिकेट। ठीक है, अब उसको अगर RCMC चाहिए तो एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, बैंक सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें वो पेमेंट करेगा RCMC नंबर के लिए, RCMC के लिए। IEC नंबर उसको देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन टू एनी अबव मेंशन अथॉरिटी। उसको 2 चीज़ देना पड़ेगा, एक बैंक सर्टिफिकेट और एक IEC नंबर। और वो कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन, इन किसी तीनों में से किसी को भी वो अपने अथॉरिटी, अपना जो भी एप्लीकेशन है वो पे कर दे देगा। इफ़ अथॉरिटी आर सेटिस्फाइड देन दे विल इशू RCMC। अगर ये अथॉरिटी क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है, देन दे विल इशू दी RCMC। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू फर्दर इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।